Okay. Hello, students. Good evening, everyone. Good evening. Okay. Yes, good evening, Himanshi. Okay, so it's exactly 4:59. We are going to start the class now. Okay. So, yes. All right. So today what we are going to do, as you know, we have already started the chapter Molecular Basis of Inheritance. And in this chapter, we have completed, transcription. We have completed transcription and we have to continue. And we have to continue to do the transcription along with some important other points. So today we'll be doing, processing. Okay. In eukaryotes, there is a need of processing. After transcription, that we will understand. Later, we are going to study about the genetic code. Okay, then we'll start the translation if time allows. Okay, so this is all we are going to do in this class. Okay, so I hope you all had your great festival. Okay, yeah, I hope you all had a special Ganesh Chaturthi festival. Okay, so yeah, so let's get back to the classes then. I wanted to wish in the last class, but I was, so much indulged in taking class and I forgot to wish you. Okay, right. सो बेटा पुराने क्लास से यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऐड किया है जो आपको आंसर करना है. गिवन डायग्राम represents the schematic structure of a transcription unit with some parts labeled as A, B, C, D. Select the option which shows its correct labeling. ठीक है, इसकी करेक्ट लेबलिंग जो देखनी है वो आपको यहाँ पे करना है. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू टाइम हिमांशी, लुक इनटू द ऑप्शंस एंड देन ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. Okay, so what is your answer, Himanshi? Yes. See, great. I can see you have answered it correctly, but still, let's look into the question. So, what it shows the transcription unit here, and you have to understand the regions. A is what region, B is what region. You know that in transcription, there are three important regions: promoter region, structural gene, and transcription. So, A is that starter or initiator region. So, wherever there is A promoter, you cancel out A and D. So, promoter hai, terminator hai, that is clear to everyone. Now, I had told you which is the template strand and which is the coding strand. Whenever you see any kind of polynucleotide DNA strand, there, if it is like 3' to 5', you consider this strand as a template strand. Okay, that is template strand. So here you can see the first strand is the template strand. Okay, so first strand is a template strand. And if this is template strand, the opposite strand or the complementary strand would be non-template or coding strand. Okay, so here you can see, C is template and D is coding. So C is the correct option here, B is wrong. Okay, so C is the answer for this question. Right. So coming to the transcription. So beta हम लोगों ने transcription process तो पढ़ लिया है. Now we are going to understand some very important minor points here. Okay, so what are those? Gene is a functional unit of inheritance. We all know that. हम लोगों ने देखा है gene is present inside a chromosome and that gene is a functional unit of inheritance and it is the DNA sequence coding for an RNA. ठीक है, मैंने आपको बताया था बेटा स्टोरी, जो DNA है वो एक किंग है, उसके पास इंफॉर्मेशन है जो कोडेड फॉर्म में है. ठीक है, तो ये जो डीएनए सीक्वेंस में जो कोडिंग है वो कौन करेगा? एक पोर्टेबल जीन में हमें ट्रांसक्राइब करना है, दैट इज आरएनए. तो ये जो आरएनए है, ठीक है, दैट टू वेरी प्रिसाइजली एमआरएनए, उसमें हम लोगों ने ट्रांसक्राइब किया था. लेकिन जीन जो है, इट इज द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर एन आरएनए, सो इट माइट कोड फॉर एनी आरएनए. ठीक है, आप ये मत समझना कि हाँ सिर्फ एमआरएनए बनाता है, आरआरएनए और टीआरएनए नहीं बनाता. बेटा बनाता है, लेकिन यहाँ पे जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो वहां पे एमआरएनए आता है. ठीक है, सो डीएनए सीक्वेंस इज सच अ बिग अबंडेंस वेयर एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम डीएनए. ठीक है, हर टाइप का आरएनए जो है वो डीएनए से बनता है. ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है. नाउ
Then I'm going to tell you one term, that is cistron. What is cistron? Cistron is a segment of DNA कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो इसका मतलब क्या है बेटा, देखो एक पूरा एक डीएनए है, ठीक है, आई एम राइटिंग है, तो ये पूरा एक डीएनए सीक्वेंस है। इन दिस आई एम गोइंग टू टेक वन सेगमेंट, सो दिस सेगमेंट आई एम कॉलिंग इट एज सिस्ट्रॉन, इसको मैं सिस्ट्रॉन बुला रही हूँ। तो ये कैसा सेगमेंट है, ये होगा सिस्ट्रॉन, ये ट्रांसक्राइब करेगा, ट्रांसलेट करेगा और ये बनाएगा पॉलीपेप्टाइड। जब हम पॉलीपेप्टाइड कहते हैं तो इसका नथिंग बट वी कॉल इट एज प्रोटीन। तो पॉलीपेप्टाइड ही प्रोटीन होता है, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, वो न्यूक्लिक एसिड होता है। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। रिमेंबर, पेप्टाइड रेफर्स टू प्रोटीन, ठीक है। तो इसी तरह हमारे डीएनए में और बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, जैसे वी कॉल इट एज म्यूटॉन, रेप्लिकॉन, ठीक है, रेप्लिकॉन होता है, म्यूटॉन होता है, रेकॉन, रेकॉन होता है। Okay, so muton is a segment of DNA where we will be seeing the any sort of mutation. ठीक, कोई भी सेगमेंट ऑफ डीएनए में अगर कहीं म्यूटेशन हो रहा है तो उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को वी कॉल इट एज म्यूटॉन। रेप्लिकॉन क्या है बेटा, ये मैंने आपको बोला था, ठीक है, रेप्लिकेशन में मैंने करवाया था। आई हैड टोल्ड यू अ एरिया ऑफ डीएनए वेयर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओराई साइट, जहां पे प्रोकैरियोट्स में एक ओराई साइट होगा एंड यूकैरियोट्स में बहुत सारे होंगे, उसको हम मल्टी रेप्लिकॉन कहते हैं, ठीक है, दैट इज रेप्लिकॉन। नाउ व्हाट इज रेकॉन? रेकॉन इज ए एरिया ऑफ सेगमेंट जहां पे रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या, जब दो जीन ऑफ डीएनए मिलके कुछ नया बनाते हैं, सो दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ डीएनए। म्यूटेशन कहीं पे और हो रहा है, सिस्ट्रॉन कुछ और है, पेप्टाइड कुछ और बना रहा है। तो लाइक दिस इन अवर एंटायर डीएनए देयर आर मेनी डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है हिमांशी, ये क्लियर है बेटा? बस आपको इतना समझना है। अब क्या होता है, जो हमने ट्रांसक्रिप्शन में जो 3 रीजन्स पढ़े थे, प्रोमोटर, टर्मिनेटर, उनके बीच में आया था स्ट्रक्चरल जीन। So you will see there are 2 types of structural genes. Okay, one is monocystonic structural gene, another one is polysystonic structural gene. जो monocystonic structural gene है बेटा, ये हम लोग देखते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है, we'll be seeing this eukaryotes. Here what happen, if you consider there is a segment of DNA, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, कुछ फंक्शनल होंगे, कुछ नॉन फंक्शनल, फंक्शन नॉन फंक्शनल, तो ऐसे क्या कहते हैं ऑल्टरनेटिवली अरेंज होंगे। तो इसमें एक होगा इंट्रॉन एक्सॉन, इंट्रॉन एक्सॉन, ऐसा होगा। सो वेयरएवर यू विल सी एक्सॉन, एक्सॉन्स आर फंक्शनल वंस, ओके, एक्सॉन्स आर फंक्शनल वंस, वेयरएज इंट्रॉन्स इनकी जरूरत नहीं है, ये कुछ काम नहीं करते, ऐसे खाते पीते बैठे हैं। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ये जो है ना प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स, ये सिर्फ यूकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। नाउ exons appears in the processed mRNA। देखा, यहाँ पे कुछ नया देखने को मिल रहा है, हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा था, उससे mRNA मिला बेटा। वॉट एवर mRNA हमको मिला है, ओके, तो वो इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स वो इमेच्योर mRNA है, या फिर प्री mRNA है, या फिर उसका नाम हेटेरोजीनस न्यूक्लियर mRNA है, बहुत सारे नेम्स हैं इसके लिए। इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स आई एम स्पीकिंग, ठीक है। तो यूकैरियोट्स में बेटा mRNA जो बनता है, mRNA ट्रांसक्रिप्ट, उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसका कुछ और काम होता है। जब प्रोसेसिंग हो जाने के बाद वो बनता है मैच्योर आरएनए, उससे पहले उसको आप हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए बुला लो, इमेच्योर आरएनए बुला लो, प्री mRNA बुला लो, कुछ भी, okay, you can call it by all 3 names. So introns do not appear in the processed mRNA. क्यों? जब प्रोसेसिंग होगी तो इन इंट्रॉन्स को निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। अब चलो देखते हैं पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्प्लिट जीन्स नहीं है। स्प्लिट जीन्स का क्या मतलब, वही बेटे एक्सॉन्स इंट्रॉन्स का, वैसे स्प्लिटिंग नहीं है बस इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, जो भी है सिर्फ फंक्शनल जीन्स हैं, कचरा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। पॉलीसिस्टोनिक जीन्स इन प्रोकैरियोट्स, एक एक जीन जो है वो वैल्यूएबल है, यहाँ पे कुछ इंट्रॉन्स नहीं है। और क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। जो प्रोकैरियोट्स में जीन है ना, जैसे समझ लो ये एक जीन है, तो ये सिर्फ एक के लिए फंक्शनल नहीं है। जैसे समझ लो ये जीन 1 जो है वो प्रोटीन बना रहा है, इसके साथ ये ऐसा भी होगा कि ये आरएनए भी बना लेगा कई बार, ठीक है।
तो ये क्या होगा, क्योंकि डीएनए रेस्ट्रिक्टेड है प्रोकैरियोट्स में, तो यहाँ क्या होगा, एक ही सेगमेंट ऑफ जीन और डीएनए इट माइट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, बट यूकैरियोट्स में ऐसे नहीं होता। यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल सेगमेंट ऑफ जीन्स हैं, वो उनका पर्टिकुलर काम करते हैं। और कभी भी ऐसा मत समझना कि एक जो स्पेसिफिक डीएनए है वो एक से दो काम करेगा, बिल्कुल नहीं। जैसे समझो ये फर्स्ट एक्सॉन है, ये जो है ये सिस्ट्रॉन है, ठीक है। जो सेकेंड एक्सॉन है ये जो है ये रेप्लिकॉन है। समझ में आ रहा है? अगर रेप्लिकॉन है तो रेप्लिकेशन में हेल्प होगा, वहां पे ओराई साइट होगा। अगर एक्सॉन सिस्ट्रॉन है तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेट होगा और प्रोटीन बनाएगा। सिस्ट्रॉन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए वेयर यू विल गेट द प्रोटीन, सो लाइक दिस। समझ में आ रहा है? तो दिस मोनोसिस्ट्रॉनिक इज इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स, पॉलीसिस्ट्रॉनिक इज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में जो जीन है वो स्पेसिफिक होता है कोई भी फंक्शन के लिए, बट प्रोकैरियोट्स में बिकॉज देयर इज लेस अवेलेबिलिटी ऑफ डीएनए एंड द जीनोमिक कंटेंट, यहाँ पे क्या होता है, कोई भी एक जीन एक से ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई हिमांशी एंड अदर्स, इज दिस क्लियर टू यू? कुछ डाउट है पॉली और मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन में आपको? क्लियर, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ रिवीजन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो कल हमने क्या पढ़ा था बेटा, हमने पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन में 3 रीजन्स देखे थे। फर्स्ट रीजन इज प्रोमोटर रीजन, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड वन इज टर्मिनेशन, ओके। तो टर्मिनेटर एरिया, तो फर्स्ट क्या होगा, ये जो हमारा डीएनए है, ओके, दिस इज एन डीएनए सेगमेंट, इसमें प्रोमोटर की जगह पे होंगे रिकॉग्निशन साइट्स, ठीक है। तो इन रिकॉग्निशन साइट्स में आके हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो बाइंड करेगा, ठीक है। ये आपको मैंने कंपैरिजन में बताया था रेप्लिकेशन के केस में। रेप्लिकेशन में केस में क्या होता है बेटा, एक मिनट, ओके ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। घर के बाहर जो बच्चे हैं उनका खेलने का टाइम है तो बहुत शोर कर रहे थे, इसीलिए मैं उनको डांट के आई, ओके, सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक जाओ करके। चलो, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोमोटर रीजन, यहाँ पे होंगे रिकॉग्निशन साइट्स। सो ये रिकॉग्निशन साइट्स बहुत जरूरी हैं ताकि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आके बाइंड करे। ये रेप्लिकेशन में नहीं हुआ था, क्यों? वहां पे डीएनए पॉलीमरेज है और उसको पता नहीं है कि डीएनए के सेगमेंट में कहाँ जाके बाइंड करे और कहाँ से पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करे, तो उसके लिए वहां पे जरूरी था आरएनए प्राइमर। रेप्लिकेशन में आरएनए प्राइमर वाज शोइंग द वे कि हाँ भाई डीएनए पॉलीमरेज तुम यहाँ पे आके बैठो, बाइंड करो और पॉलीमराइजेशन करो। बट यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज के लिए स्पेसिफिक एरिया है रिकॉग्निशन साइट जहाँ पे प्रोमोटर में आके बैठ जाता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको लास्ट क्लास में नहीं बताई थी। प्रोमोटर रीजन में आपको 2 चीज याद रखने हैं, ठीक है। एक हम बुलाते हैं बेटा प्रिब्नो बॉक्स, ठीक है, वन इज कॉल्ड एज प्रिब्नो बॉक्स, अनदर वन इज कॉल्ड एज टाटा बॉक्स, और इसका अनदर नेम टाटा बॉक्स, ठीक है। इसका और एक नेम है गोल्डबर्ग, ओके, गोल्डबर्ग हॉनेस, पता नहीं ये क्या नाम है यार, इन अंग्रेजों के नाम क्या होते हैं, ओके, गोल्डबर्ग हॉनेस बॉक्स, ठीक है। सो हियर इफ यू सी प्रिब्नो बॉक्स इज इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो प्रोमोटर जो रीजन है बेटा उसका नाम बता रही हूँ मैं, बस उसका नाम जो प्रिब्नो बॉक्स है ये है इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ठीक है, और जो टाटा बॉक्स है ये है इन द केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये क्या है बेटा, बस एक नाम है प्रोमोटर रीजन के लिए, ये याद रखो, कई बार पूछ लेता है ऑप्शंस में, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन में प्रोमोटर रीजन में, प्रोकैरियोट्स में हम इसको नेम देते हैं प्रिब्नो बॉक्स, और यूकैरियोट्स में इसको बुलाते हैं टाटा बॉक्स और गोल्डबर्ग हॉनेस बॉक्स, ओके। तो ये है इसका नाम। चलो, तो अब इसको रिकॉग्निशन साइट मिल गया, प्रोमोटर में आरएनए पॉलीमरेज आके बैठा, तो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होने के बाद भी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ, क्योंकि इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, दैट इज सिग्मा फैक्टर,
ठीक है, तो इनिशिएशन फैक्टर कौन बनता है, वो सिग्मा फैक्टर बनता है। तो सिग्मा फैक्टर जब आरएनए पॉलीमरेज में बाइंड करेगा तब एक्चुअली प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बबल जो फॉर्म हो रहा है कि सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट बन रहा है, तो दिस इज दिस मीन्स कि ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, मैंने आपको बताया था जहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, जहां पे टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो मदर स्ट्रैंड की तरह एक्ट करेगा। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो है हमको एमआरएनए ओरिजिनेट होता जाएगा, फॉर्मेशन होता जाएगा। ठीक है, तो ये जो अब समझ लो ये टेम्पलेट है। ठीक है, यहाँ पे 3 प्राइम है, यहाँ पे 5 प्राइम है, ये टेम्पलेट है। यहाँ पे एक नया एमआरएनए स्ट्रैंड बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे एमआरएनए स्ट्रैंड बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे एक डीएनए स्ट्रैंड है, वो ऐसा होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो एमआरएनए और ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये दोनों होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, ये दोनों होंगे कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और जो एमआरएनए है वो नॉनसेंस, सॉरी, हाँ, ये जो एमआरएनए है वो कोडिंग स्ट्रैंड के साथ होगा आइडेंटिकल, वो होगा आइडेंटिकल। ठीक है, ये बात आपको याद है ना हिमांशी, आई होप यू रिमेम्बर दिस। ठीक है, तो एमआरएनए इज आइडेंटिकल टू कोडिंग स्ट्रैंड, एंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा एमआरएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब हम टर्मिनेशन की बात करते हैं तो टर्मिनेशन इज पॉसिबल बाय 2 मीन्स। ठीक है, 2 तरीकों से टर्मिनेशन होता है। हाँ, मुझे और एक चीज आपको बतानी थी, यहाँ पे बेटा इन द इनिशिएशन प्रोसेस देखो, आरएनए क्या कहते हैं, डीएनए है, आरएनए पॉलीमरेज अटैच किया है, यहाँ पे अभी भी सिग्मा नहीं अटैच हुआ। ओके, सिग्मा फैक्टर अटैच नहीं हुआ। दिस कॉम्प्लेक्स को हम बुलाते हैं कोर एंजाइम। ओके, देयर इज अनदर टर्म दैट आई वांटेड टू टेल यू, कोर एंजाइम। बेटा व्हाट इज कोर एंजाइम? कोर एंजाइम के पास है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉल है, पॉलीमरेज है, प्लस डीएनए सेगमेंट है, माइनस सिग्मा फैक्टर। तो यहाँ पे देख लो, अगर सिग्मा फैक्टर नहीं है, आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए है, तो उसको बुलाते हैं कोर एंजाइम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। समझ आ रहा है? ये चीज आप याद रखो बेटा, ये आपको कई कबार पूछ लेता है, पूछा भी जा सकता है, पता नहीं, बट आप याद रखना। ठीक है, तो ये चीज एक आपको बतानी थी। नाउ कमिंग टू द ट्रांसक्रिप्शन में टर्मिनेशन का पार्ट, यहाँ पे क्या होगा, पूरा जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्राइब हो जाएगा, सारा जो स्ट्रक्चरल जीन है वो ट्रांसक्राइब होके एक रीजन पे आके रुकेगा, दैट इज टर्मिनेटर रीजन। ठीक है, तो इस रीजन में क्या होगा बेटा, हियर देयर इज 2 पॉसिबिलिटी, वन इज विद द हेल्प ऑफ रो फैक्टर। ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज आके टर्मिनेटर पे रुकेगा तो रो फैक्टर जाके बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज को और बताएगा कि हाँ भाई तुम अपना ट्रांसक्रिप्शन अभी खत्म करो। ठीक है, तो जब वो खत्म करने का इंडिकेशन मिलेगा तो एमआरएनए सेपरेट जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को छोड़ देगा, तो सारा कुछ वो सेपरेट हो जाएंगे, सारा जो कॉम्प्लेक्स बना था। ये एक टाइप का टर्मिनेशन है। दूसरा टर्मिनेशन मैंने बताया था हेयर पिन लूप में। ठीक है, दैट इज हेयर पिन लूप फॉर्मेशन होगा। ओके, सो हेयर पिन लूप फॉर्मेशन होगा। तो इस हेयर पिन लूप का क्या होगा, यहाँ पे इस रीजन में देख रहे हो, दिस इज जी एंड सी रिच, जी एंड सी रिच एरिया है, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत हाई एफिनिटी है। लेकिन यहाँ पे जो रिच, यहाँ पे जो एरिया है ना वो ए और यू रिच है। ठीक है, तो जो एमआरएनए बना है उसमें कंटिन्यूअस एडेनाइलेशन हुआ है, ये कंटिन्यूअस होगा, और उसके साथ यू 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 होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे हेयर पिन में जो है वहां पे जीसी रिच एरिया है, विच इज अ स्ट्रॉन्गर रीजन, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ये यू में। तो क्या होगा, आराम से वो एमआरएनए सेपरेट होके आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो ये एक टाइप का टर्मिनेशन है, रो फैक्टर एंड हेयरपिन लूप। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। क्लियर? इतना तो क्लियर है सबको, ट्रांसक्रिप्शन तो सबको क्लियर है ना? तो इस ट्रांसक्रिप्शन में बेटा आपको और एक चीज याद रखनी है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस में कई कबार ना मैग्नीशियम आयोन्स जो है उनकी जरूरत पड़ जाती है, मैंगनीज आयोन्स की जरूरत पड़ जाती है, और कई जगह पे एनर्जी की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इतना याद रख लो, ट्रांसक्रिप्शन में कोई भी सवाल आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, चलो अब इन बैक्टीरिया, अब हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड।
कपल्ड का मतलब क्या होता है बेटा, दोनों ही एक साथ करने लग जाते हैं। कौन? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। सो ट्रांसलेशन बिगिंस बिफोर एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब। अभी एमआरएनए फुल्ली बन के ट्रांसक्राइब हुआ ही नहीं कि चलो ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। एमआरएनए रिक्वायर्स नो प्रोसेसिंग टू बी एक्टिव हियर। जैसे यूकैरियोट्स में मैंने बताया था प्रोसेसिंग होना है, वो सब कुछ यहाँ पे लफड़ा नहीं है। कहाँ पे? प्रोकैरियोट्स में कुछ नहीं, जो एमआरएनए बना है वो रेडीमेड है, वो एक्टिव है, वो अभी ट्रांसलेशन के लिए बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन सेम कंपार्टमेंट, नो सेपरेशन ऑफ साइटोसॉल एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे देख लो ये प्रोकैरियोट है, यहाँ पे सेपरेट नहीं है, न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होगा, न्यूक्लियस ट्रांसक्रिप्शन अंदर होने के बाद एमआरएनए साइटोसॉल बाहर आएगा साइटोप्लाज्म में, वहां पे ट्रांसलेशन होगा। वो इस केस में नहीं है, वो प्रोकैरियोट्स में नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा कंपार्टमेंट ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, साथ में ट्रांसलेशन हो रहा है, तो ऐसे प्रोकैरियोट्स में होता है। बट यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस के अंदर होती है ट्रांसक्रिप्शन। ये जो बना है ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, और यहाँ पे प्रोसेसिंग होते होते जो एमआरएनए बना है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आके ट्रांसलेशन को कंप्लीट करता है। ठीक है। इन यूकैरियोटिक सेल नो कपलिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स। क्लियर? तो अब हम देखते हैं कि यूकैरियोट्स में आखिर होता क्या है, क्या प्रोसेसिंग होती है जिससे जो इनएक्टिव है वो एक्टिव एमआरएनए में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप पहले नाम याद रखो बेटा। बिफोर प्रोसेसिंग इट हैज 3 नेम्स। सो वन इज HNRNA, immature RNA, pre-RNA, ये सारे जो नाम है ये वो ही आरएनए ट्रांसक्रिप्ट के नाम है बिफोर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो HNRNA सिंपली मीन्स दैट इट इज हेटेरोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ओके, सो आफ्टर प्रोसेसिंग हो जाने के बाद इसको हम बुलाते हैं मेच्योर आरएनए, जो रेडी होता है ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, तो अभी जो प्रोसेसिंग होती है ये होती कैसे है? इट इज हैपनिंग इन 3 स्टेजेस। ठीक है, 3 स्टेजेस यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। पहली चीज है बेटा, आप यहाँ पे देखोगे स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग का क्या मतलब होता है? यहाँ पे मैंने बताया ना कि हमको अनवांटेड वेस्ट पड़ा है हमारे डीएनए में, जैसे इंट्रॉन्स। हमको सिर्फ एक्सॉन्स चाहिए क्योंकि एक्सॉन्स ही फंक्शनल है, इंट्रॉन्स की जरूरत हमें है नहीं। तो अब हम प्रोसेसिंग करने में क्या करेंगे? इन इंट्रॉन्स को निकाल के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में क्या हो रही है? फ्रॉम HNRNA इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर स्प्लाइस्ड टुगेदर। ठीक है, तो इंट्रॉन्स को निकाल के फेंका, एक्सॉन्स को बाजू बाजू में चिपका दिया। ठीक है, तो ये जो रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स हो रही है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग, फॉर दिस वी नीड सम स्पेशल प्रोटीन्स। Okay, we call them as spliceosomes. Okay, these are special proteins called spliceosomes. ये जो यहाँ पे सर्कल में आपको दिख रहा है ना, ये spliceosomes हैं। ये spliceosomes आके इंट्रॉन्स में अटैच करेंगे और पुल करके लेके जाएंगे इंट्रॉन्स को, लिविंग बिहाइंड ओनली एक्सॉन्स। ठीक है, तो ये पहली चीज होती है इन द प्रोसेसिंग ऑफ HNRNA। तो दूसरी चीज होती है कैपिंग। देखा, पहले काट के इंट्रॉन्स निकाल दिया, फिर टोपी पिनाया। तो टोपी क्या पिनानी होती है यहाँ पे? Here, a nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5' end. देखो बेटा, हमारे पास जो HNRNA मिला है उसके पास 2 एंड्स तो होंगे ही होंगे, एक 5' एंड होगा और एक 3' एंड होगा। तो 5' एंड में क्या होगा? हम लोगों ने कैप कर रहे हैं, वी आर पुटिंग अ कैप 5' रीजन पे। कौन सा कैप लगा रहे हैं हम लोगों ने? मीथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट दिख रहा है यहाँ पे, 5' एंड में मीथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को हमने लगाया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैपिंग। एंड अनदर इज टेलिंग। एक बार कैप लगाया, एक बार पूंछ लगा रहे हैं। चलो टेलिंग, तो टेलिंग में हम लोग क्या टेल कर रहे हैं? ओके, टेल किस चीज से बनी है? ये बनी है बेटा अडेनाइलेशन। जो अडेनाइन न्यूक्लियोटाइड है इसको हमने बहुत सारे नंबर्स में बना लिया, सो दैट इज पॉली अडेनाइलेशन। ठीक है, ये अटैच करते जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो, पॉली ये टाइल है ना, तो यहाँ पे आप अगर न्यूक्लियोटाइड में देखोगे तो यू विल सी कंटिन्यूअस एज हियर। ठीक है, तो कंटिन्यूअस एज मिलेंगे आपको। क्लियर? तो ये है टेलिंग। आप यहाँ पे क्या करोगे? अडेनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड एट द 3' एंड। ओके, सो ये क्लियर हो गया। तो प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ आरएनए इन यूकैरियोट्स, इसमें 3 प्रोसेसिंग होती हैं: स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, कैपिंग, एडिंग ऑफ मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एट 5' एंड देन टेलिंग। ठीक है, एडिंग ऑफ
एडेनाइलेट रेसिड्यूज एट द 3' एंड। ठीक है, तो ये सब हो जाने के बाद हमको मिलता है फुल्ली प्रोसेस्ड mRNA। अब ये मेच्योर mRNA है और ये बिल्कुल रेडी है ट्रांसलेशन करने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा यूकैरियोट्स में। चलो अभी हम लोग देखते हैं 3 RNA पॉलीमरेसेस आर नीडेड इन यूकैरियोट्स। देखा, अब ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में हमने देखा बेटा एक आरएनए पॉलीमरेज है और ये काफी है, वो एक आरएनए पॉलीमरेज पूरा काम कर दे रहा है। बट यूकैरियोट्स में यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत ज्यादा है, एक से ज्यादा टाइप की जरूरत है। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 3 भी चाहिए। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या कर रहा है, इट इज ट्रांसक्राइबिंग आरआरएनएज, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, जो 2 काम कर रहा है वो RNA polymerase to transcribes the heterogeneous nuclear RNA. It is the precursor of mRNA. ठीक है, तो ये हमारे जो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इसमें जो RNA polymerase 2 है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन 3 का काम क्या है बेटा, ये ट्रांसक्राइब करता है tRNA को, फिर 5s rRNA, फिर snRNA। देखो बेटा यहाँ पे जो लिखा है ना snRNA, ये स्मॉल न्यूक्लियर RNA है। rRNA में भी बहुत टाइप्स हैं। ठीक है, तो आरआरएनए में भी बहुत टाइप्स है और जो आरएनए है उसमें भी बहुत टाइप्स हैं। जैसे यहाँ पे एसएनआरएनए हो गया, ऐसे मैं कुछ लिखती हूँ आपको एमआईआरएनए। ओके, एमआईआरएनए है और पता नहीं कई और टाइप्स के आपको आरएनए देखने को मिलेंगे, बट उनकी जरूरत नहीं है। जैसे एसआईआरएनए, ओके, एसआईआरएनए है, एआरएनए है, ओके, एआरएनए है, ऐसे बहुत सारे मिलेंगे बेटा आपको, बट ये आपके सिलेबस में नहीं है। बस आप इतना याद रखो, आरएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प्स इन द ट्रांसक्राइबिंग ऑफ टीआरएनए, 5s rRNA एंड एसएनआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे वही डायग्राम दिया है। तो यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 हेल्प्स इन द ट्रांसक्राइबिंग ऑफ rRNA। तो यह आपके ना याद रखना है बेटा आपको, ये दिस यू नीड टू रिमेंबर। यहाँ पे कोई मैकेनिज्म तो है नहीं, बट यू हैव टू रिमेंबर इट बाय मेमोराइजिंग। ओके, आरएनए पॉलीमरेज 2 प्रोटीन जीन के लिए, मतलब ये कौन सा होगा, सिस्ट्रॉन होगा यहाँ पे। ठीक है, सिस्ट्रॉन होगा। तो इसी तरीके पे यहाँ पे टीआरएनए जीन है जो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज 3 हेल्प करेगा। बस इतना आप जान लो तो काफी है। तो यहाँ पे देख लो बेटा, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज राइबोसोम, है ना, यहाँ पे राइबोसोम है। तो यहाँ पे देख लो ये प्रोकैरियोट्स होगा, यहाँ पे यूकैरियोट्स का होगा। तो राइबोसोम में 2 टाइप के यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स। वन इज स्मॉलर सब यूनिट एंड अनदर वन इज लार्ज सब यूनिट। दोनों में ही होते हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होगा, यहाँ पे देख लो 30s सब यूनिट है जो स्मॉल यूनिट है, और 50s होगा वो लार्जर होगा। ठीक है, तो पूरे जो राइबोसोम में है ना बेटा, आपको 2 चीज देखने को मिलेंगे पूरे राइबोसोम में। आपको मिलेगा rRNA, उसके साथ प्रोटीन्स, उसके साथ प्रोटीन्स। आपका जो प्रोटीन फैक्ट्री है ना, तो राइबोसोम को बेटा हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो इस प्रोटीन फैक्ट्री में आपको 2 ही चीजें मिलती हैं, rRNA और प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पे 21 किस्म के प्रोटीन, यहाँ पे 34 किस्म के प्रोटीन, यहाँ पे इतने और डिफरेंट टाइप्स ऑफ rRNA। ठीक है, सब यूनिट्स ऑफ rRNA। तो इतना याद रख लो, ये कई के बाद पूछ लेता है डायग्राम्स में या फिर मल्टीपल चॉइस में आपके सीबीएसई में भी, यू नीड टू रिमेंबर। ओके, नाउ कमिंग टू द डिफरेंस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो क्या डिफरेंस है भाई प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, हमने देख लिया, फिर भी कॉलम में देख रहे हैं यहाँ पे। प्रोकैरियोट सेल में बेटा लोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो बेटा साइटोप्लाज्म इसलिए कह रहे हैं कि वहां पे न्यूक्लियस तो है ही नहीं, न्यूक्लियस ही नहीं है, पूरा एक कंपार्टमेंट है जहां पे एक प्लाज्मिड होगा, एक न्यूक्लियोइड होगा, और पूरा साइटोप्लाज्म के अंदर वो तैर रहा है बस। ओके, इट्स फ्लोटिंग। तो यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, बट जो लोकेशन है ट्रांसक्रिप्शन की वो होती है न्यूक्लियस में। मैंने बताया ना, जो डीएनए के पास जो कोडेड इंफॉर्मेशन है वो पोर्टेबल जीन दैट इज एमआरएनए में कॉपी हो रही है, ये कहाँ पे होता है, पैलेस के अंदर जहां पे डीएनए है। ठीक है, ये चीज। नाउ आरएनए पॉलीमरेज, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज हैव कैपेसिटी टू प्रोड्यूस आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। मैंने बताया ना, सारे टाइप के आरएनए सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज एक ही कर लेगा प्रोकैरियोट्स में। But in eukaryotes, 3 classes of different RNA polymerase is needed. मैंने बताया ना, 1 RNA बनाएगा, 2 mRNA बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 tRNA, ऐसे करके डिफरेंट हमको RNA polymerase के क्लासेस चाहिए। नाउ सिंथेसाइज्ड RNA कैसा होगा,
प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए है वो फुल्ली फंक्शनल होगा एंड ट्रांसलेशन पीछे से ही स्टार्ट करते जाएगा, मतलब कपलिंग रिएक्शन आप देखोगे, अभी ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरीके से खत्म ही नहीं होगी, ट्रांसलेशन स्टार्ट हो गया। बट यूकैरियोट्स में क्या हो रहा है, यूकैरियोट्स में आरएनए जो बना है, एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बना है वो फुल्ली फंक्शनल नहीं है, उसको जरूरत है फंक्शनल करने की। तो जो प्री मेच्योर एमआरएनए बना है उसको हम प्रोसेसिंग करेंगे, मॉडिफाई करेंगे टू फॉर्म एमआरएनए विच इज वेरी मच मेच्योर। तो ये जो मेच्योर एमआरएनए है वो ट्रांसलेशन में जाएगा और प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, तो प्रोसेस कैसे होगा, यहाँ पे देखो ट्रांसक्रिप्शन अलॉन्ग विद ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस, तो दोनों साथ साथ में हो जाएंगे, तो इसको हम बुलाते हैं ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड ट्रांसलेशन। ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स में देखने मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट ओनली ट्रांसलेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, बताया ना, ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ही आपको ट्रांसलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, देन ट्रांसक्राइब्ड आरएनए इज पॉलीसिस्टोनिक, मैंने बताया ना क्या मतलब है पॉलीसिस्टोन का, multiple genes are regulated by only one promoter, so multiple proteins are produced in a chain। ठीक है, एक जो चेन है उसमें मल्टीपल प्रोटीन्स आपको मिलेंगे। जो यहाँ पे यूकैरियोट्स में है वो मोनोसिस्टोनिक है, सिंगल जीन इज प्लेस्ड ऑन सिंगल प्रमोटर एंड सिंगल प्रोटीन इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल चेन। ठीक है, तो ये हो गया मोनोसिस्टोन और पॉलीसिस्टोन। चलो, तो क्वेश्चन टाइमिंग है, segments of mRNA removed during splicing are called what? चलो, you have to answer me. वेरी गुड हिमांशी, दैट इज इंट्रॉन्स। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंट्रॉन्स है, एक्सॉन्स आर फंक्शनल, तो उनको हमें एक दूसरे के साथ जोड़ना है बाय रिमूविंग इंट्रॉन्स। ठीक है, अब नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द जेनेटिक कोड। ओके, सो जेनेटिक कोड है क्या बेटा, it is the sequence of nucleotides, that means nitrogen base in mRNA that contains information for protein synthesis। मैंने बताया ना डीएनए के पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन था, वो इंफॉर्मेशन अब किसने कॉपी कर लिया, वो इंफॉर्मेशन अब कॉपी कर लिया एमआरएनए ने। तो एमआरएनए के पास वो अब इंफॉर्मेशन है डीएनए से जो मिला था, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर मेकिंग प्रोटीन। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो है एमआरएनए में। ठीक है, तो ये चीज। नाउ द सीक्वेंस ऑफ 3 bases डिटरमाइनिंग अ सिंगल अमाइनो एसिड इज कोडॉन। तो अब यहाँ पे देख लो बेटा, लुक एट दिस स्ट्रक्चर, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये एमआरएनए है। ठीक है, तो एमआरएनए में क्या होगा, नाइट्रोजन बेसिस होंगे, जैसे यहाँ पे देख लो एडेनाइन है, यूरासिल, ग्वानिन, एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानाइन, ऐसे करके बहुत सारे नाइट्रोजन बेसिस हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा, ग्रुपिंग करेंगे 3-3 का नाइट्रोजन बेस, 3-3 नाइट्रोजन बेस का ग्रुपिंग करेंगे, और ये जो 3 नाइट्रोजन बेस मिला के इसको हम कहते हैं कोडॉन, इसको हम कहते हैं कोडॉन। 3 नाइट्रोजन बेसेस टुगेदर मेक अ ग्रुप, वी कॉल इट एज कोडॉन। और एक कोडॉन जो है ना वो किसके साथ क्या कहते हैं, कोडिंग करता है विद द अमाइनो एसिड। ठीक है, एक कोडॉन एक अमाइनो एसिड के साथ कोड करता है। ऐसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, सुनो, 3 नाइट्रोजन बेस हो गए कि बेटा ये बनाएंगे एक कोडॉन, ये बनाएंगे एक कोडॉन। ठीक है, तो ये जो एक कोडॉन है ये किसको कोड करेगा, एक यहाँ पे कोडॉन बने। ठीक है, ये जो एक कोडॉन है ये बनाएगा एक अमाइनो एसिड का। तो ऐसे होता है ये सारा खेल। ओके, सो दिस मच यू नीड टू रिमेंबर। अब मुझे बताओ मैम जरूरत क्या है एक ही यहाँ पे एक कोडॉन को यहाँ पे 3 न्यूक्लियोटाइड बेसिस बनाने की, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज हियर कोडॉन इज ट्रिपलेट। तो जरूरत क्या है ट्रिपलेट होने की, इसको आप मोनो भी बना सकते थे, आप इसको डाई भी बना सकते थे, डिप्लेट भी बना सकते थे, क्यों आपने ट्रिपलेट बनाया बेटा, इसके लिए रीजन है। ठीक है, जब इसके ऊपर स्टडी हो रहा था तब इन लोगों को 2 चीजें रेफरेंस में थी। क्या 2 चीजें थी बेटा, इन लोगों के दिमाग में एक था कि हाँ भाई हमारे बॉडी में 20 अमाइनो एसिड्स हैं, अगर 20 अमाइनो एसिड्स हैं तो कम से कम हमारे पास कितने होने चाहिए, 20 कोडॉन्स तो होने ही चाहिए, 20 कोडॉन्स तो होने ही चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज उनके दिमाग में थी। अब देखो, अब आप अगर ऐसा मैं बताऊं ना कि चलो एक हमने ले लिया, ओके वी हैव टेकन 1, ओके 1 एज द, और यू कैन से एक नाइट्रोजन बेस को एक कोडॉन बना लिया, तो तब क्या होता केस, तो व्हाट वुड हैपन हियर, कैन एनीबॉडी टेल मी, क्या नंबर एनफ हो जाता 20 अमाइनो एसिड्स के लिए?
एनफ हो जाता? यस और नो, से यस और नो, हो जाता या नहीं? बोलो बेटा। पता नहीं विच बुक आई एम कीपिंग विथ मी, nobody saying anything. Did you not understand what I said? देखो, एक मिनट यहाँ पे मैं एक सिंगल शीट ले लेती हूँ, आपको मैं समझाती हूँ मैं आखिर क्या बता रही हूँ. I'll take a single sheet here. Okay, so what I'm trying to say here is अगर जेनेटिक कोडॉन सिंगलेट होता, ठीक है, अगर जेनेटिक कोडॉन सिंगलेट होता तो तब क्या होता, यहाँ पे मैं ऐसे बना रही हूँ इसको, ठीक है, ऐसे बना रहे हैं. क्यों? क्योंकि 4 क्यों लिया मैडम? हमारे पास तो न्यूक्लियोटाइड बेसिस 4 है ना, न्यूक्लियोटाइड बेसिस तो हमारे पास 4 है. तो अब हमने सिंगलेट बना दिया, सिंगलेट बना दिया तो आपके पास बचेगा क्या? 4 × 1 = 4. आपके पास सिर्फ 4 ही कोडॉन बनेंगे, 4 ही कोडॉन, 4 ही कोडॉन. आपके पास है 20 अमाइनो एसिड, आपके पास टारगेट है 20 अमाइनो एसिड, ठीक है. तो 4 को आपके पास आप रख के क्या करोगे सिंगलेट में? चलो आप डुप्लेट देखते हैं, ठीक है, आप डुप्लेट देखते हैं. तो डुप्लेट में क्या होगा, आप यहाँ पे देख लो 4:2, ठीक है. तो अब आप क्या करोगे, 4 × 4 करोगे, ये कितना होगा बेटा? ये 16 होगा. ये भी फिर भी क्या करेंगे, सारे अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं करेंगे, ठीक है, ये सारे अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं करेंगे. अब हम बनाएंगे ट्रिपलेट, ठीक है, अब हम बनाएंगे ट्रिपलेट जो 4:3 होगा. तो यहाँ पे आप देख लो 4 × 4 × 4 करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 64, ठीक है, 64. तो आपको कितने कोडॉन्स मिले यहाँ पे? 64 कोडॉन्स मिले. और यहाँ पे ये सारे 20 अमाइनो एसिड्स को कोड कर सकते थे, ठीक है, ये एनफ थे, ये एनफ थे. अगर आप इससे ज्यादा लेते तो वो बहुत ज्यादा हो जाते, ठीक है. आप ट्रिपलेट से कम लेते तो वो बहुत कम हो जाते. तो ट्रिपलेट वाज अ एक्चुअल नंबर विच केम एज अ डिसाइडिंग फैक्टर. हाँ भाई, कोडॉन जो है वो ट्रिपलेट हो सकता है, ठीक है. तो ये होगा. और इसको किसने बताया? किसने बताया? एक जो पर्सन थे जॉर्ज गेमाओ, उन्होंने किया ये काम. यस, वेरी गुड हिमांशी. ओके, गिवन बाय जॉर्ज गेमाओ का काम है ये. ओके, तो ये चीज आपको याद रखनी है. देन तो ये हो गया आपके 20 इन्वॉल्व अमाइनो एसिड्स इन द ट्रांसलेशन. ओके, तो आपको सिर्फ आइडिया है 20 अमाइनो एसिड्स का, बट 22 डिस्कवर हुए हैं. कैन एनीबॉडी टेल मी विच आर दोस 2 एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स? दो और एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड्स. 20 तो हाँ नॉर्मल है, वो सब लोग बताते हैं, सारे टेक्स्ट बुक्स में 20 लिखे हैं. बट आप अगर हाइयर एंड बुक्स में जाओगे तो वहां पे आप देखोगे 22 अमाइनो एसिड्स होंगे, विच आर दोस 2 एक्स्ट्रा. एंड वो 2 अमाइनो एसिड्स न्यूली डिस्कवर हुए हैं, न्यूली डिस्कवर हुए हैं. ओके, ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, ये आप करके मुझे कल बताना, ठीक है. चलो, यस, वेरी गुड हिमांशी. एक मैं बताती हूँ, सेलेनोसिस्टीन करके एक है, और एक है आप, ये आपका काम है, ठीक है, 2 हैं. चलो, तो अलेनाइन, अर्जिनिन, एस्पर्जिन, ये सारे ही 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं ट्रांसलेशन के लिए. चलो, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कोडॉन्स फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. ओके, कोडॉन्स फॉर डिफरेंट अमाइनो एसिड्स. तो ये हमारी जो है जेनेटिक कोड डिक्शनरी है, और ये कैसे बनती है मैं आपको बताती हूँ. जो लेफ्ट पार्ट है ना, दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड फर्स्ट, दिस इज कंसिडर्ड फर्स्ट, एंड द टॉप वन इज कंसिडर्ड टू सेकेंड. ये आप सेकेंड रिप्रेजेंट करना, और जो थर्ड थर्ड है ये राइट टाइप, राइट एंड का होगा. ओके, तो यहाँ पे देख लो बेटा, फर्स्ट यू आएगा, सेकेंड यू आएगा, यहाँ पे थर्ड में कौन सा है? यू. अगेन फर्स्ट यू, सेकेंड यू, थर्ड में कौन सा है? सी. फर्स्ट यू, सेकेंड यू, थर्ड में कौन सा है? ये. ऐसे करके आप ना अपने सारे ही कोडॉन बना सकते हो, ठीक है. सो आपको टोटल कितने कोडॉन्स मिले हैं? आपको मिले हैं 64 कोडॉन्स. इसमें कितने फंक्शनल हैं? इसमें कितने फंक्शनल हैं? 61 और फंक्शनल. ओके, 61 और फंक्शनल, क्योंकि इनमें जो 3 कोडॉन्स हैं, इसमें जो 3 कोडॉन्स हैं उनको हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन्स. ओके, 3 आर स्टॉप कोडॉन. यू माइट बी वंडरिंग मैम विच आर दोस 3 स्टॉप कोडॉन्स. तो बेटा वो जो 3 है ना, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. एक होता है यू ये, यू ये, यू ए जी एंड यू जी. ये तीनों जो हैं ये स्टॉप कोडॉन्स हैं अमॉन्ग द 64 वन. ओके, वेरी गुड. क्या इनके नाम बता सकता है कोई? कैन एवरीबॉडी टेल मी देयर नेम्स? यूएए का क्या नाम है, यूएजी का क्या नाम है, और यूजीए का नाम क्या है? यस,
ओके, तो इन स्टॉप कोडॉन्स को नेम भी दिया है, ऑक्रे, एम्बर एंड ओपाल। ओके, ओपाल। तो ये तीनों नाम है और ये तीनों स्टॉप कोडॉन्स हैं। इनके अलावा जितने भी 61 कोडॉन्स हैं वो सारे फंक्शनल हैं और वो किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो ये सारे चीजें आपको याद रखना है। चलो, ओके, ग्रेट। हाँ, और इनको याद करने की एक टेक्निक भी है बेटा, अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं तभी बताऊंगी, क्योंकि देखो ये याद करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे PLIMV ऐसे करके याद रखो, कॉलम कॉलम वाइज आपको याद रखना होता है कौन सा कोडॉन कौन से अमाइनो एसिड को कोड करेगा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, SPTA। ओके, जैसे यहाँ पे बताती हूँ मैं, सर, फिरा, ओके, थरकी, आदमी। ओके, सर, फिरा, ठरकी, आदमी, ऐसे मैंने कॉलम 2 के लिए बनाया है। ऐसे मैंने तीनों मतलब सारे कॉलम्स के लिए बनाया है। दिस इज टू मच इजी मैम, या सर, फिरा, ठरकी, आदमी। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपको सारे ही बता सकती हूँ, बट मुझे लगता है कि ये आप खुद बनाइए और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइए कि इसमें बहुत मजा आएगा कि आप कैसे बना रहे हो निमोनिक्स याद रखने के लिए। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो ये मैं कल बताती हूँ। ठीक है, अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, सेकेंड कॉलम। ओके, सर, फिरा, ठरकी, आदमी। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद रखो, फन तरीके से आप याद रख लोगे, और ये जरूरी भी है, कई बार पूछ लेता है। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड। तो कोडा ट्रिपलेट है, हमने देखा ना बेटा। हाँ, डुप्लेट होगा तो वो सफिशिएंट नहीं है, सिंगलेट होगा तो सिर्फ 4 ही बन रहे हैं क्योंकि 4 ही नाइट्रोजन बेसेस हैं। अगर हमने 4 टू द पावर ऑफ 4 ले लिया तो पता नहीं 200 कितने के आ जाएंगे, उतनी तो हमारे अमीनो एसिड्स की कैपेसिटी नहीं है, उतना नीडेड नहीं है। ठीक है, तो 61 कोडॉन्स कोड फॉर अमीनो एसिड्स, तो बाकी जो 3 है दे डू नॉट कोड, दे डू नॉट कोड। ठीक है, फॉर एनी अमीनो एसिड्स दे एक्ट एज स्टॉप कोडॉन, दैट इज टर्मिनेशन कोडॉन्स और नॉनसेंस कोडॉन। ठीक है, नॉनसेंस इसलिए इनका नाम है क्योंकि कुछ काम नहीं करते हैं। हाँ, वो तो स्टॉप स्टॉप तो करते हैं, बस उसके अलावा कुछ इनका खास काम है नहीं। ठीक है, तो नॉनसेंस कोडॉन भी कह सकते हैं या फिर टर्मिनेशन कोडॉन भी कह सकते हैं। बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन भी है। ओके, ये आपका होमवर्क है, मुझे ये एक्सेप्शन आप मुझे कल बताना, अगर आप नहीं बताओगे तो ये मैं बताऊंगी। ठीक है, एक्सेप्शन है जरा चीजों में। ओके, हाँ, तो मेरा बोलने का क्या मतलब है, ये जो 3 जो मैंने स्टॉप कोडॉन्स बताए हैं ना, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स में, जैसे पैरामीशियम, सीलिएटेड प्रोटोजोवंस, वहां पे जो नॉन स्टॉप कोडॉन्स हैं वो वहां पे कोडिंग कर जाते हैं एकदम। ओके, वहां पे कोडिंग कर जाते हैं। तो वो कौन सा कोडॉन है और कौन सा अमाइनो एसिड है जिसको कोड करेगा, वो आपका होमवर्क है। ठीक है, आप बताओ मुझे, मतलब मैं बताऊंगी। ठीक है, चलो, AUG हैज ड्यूअल फंक्शंस। AUG का काम क्या है बेटा, इट इज एन इनिशिएटर कोडॉन। याद रखो, जब भी कभी भी जब आप mRNA ट्रांसक्रिप्ट देखोगे, वहां पे जो फर्स्ट कोडॉन होगा वो स्टार्ट कोडॉन होगा, वी कॉल इट एज AUG, विच इज अ स्टार्टर कोडॉन। इसके अलावा ये जो स्टार्ट कोडॉन है वो कोड करेगा सिर्फ एक ही टाइप के अमाइनो एसिड को, दैट इज मिथियोनिन। सिर्फ मिथियोनिन को ही कोड करेगा। ओके, तो इन यूकैरियोट्स मिथियोनिन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड फॉर्माइल मिथियोनिन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथियोनाइन होगा एंड यूकैरियोट्स में मिथियोनाइन होगा। ठीक है, एंड अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मेनी कोडॉन्स एक्सेप्ट AUG। AUG सिर्फ मिथियोनिन के साथ जुड़ा है। जैसे बेटा एक शादी बनी है, समझो, AUG उसकी बीवी है। ओके, AUG वाइफ है। ठीक है, और ये जो मिथियोनिन है ये हस्बैंड है, तो इनकी दोनों की जोड़ी बन गई है। AUG इज मैरिड टू मिथियोनिन। इनके अलावा ये कहीं पे अदर जगह पे मुंह नहीं मारते। ठीक है, ये जो UGG है ये भी मैरिड है विद द ट्रिप्टोफान। एकदम गहरा प्यार, गहरी अंडरस्टैंडिंग और गहरा उनके बीच में वफादारी। ठीक है, बट दूसरे जो हैं वो ऐसे नहीं है ना। तो एन अमाइनो एसिड इज कोडेड बाय मेनी कोडॉन्स। तो समझो, अमाइनो एसिड तो मेल है। क्या आप जो जितने भी लोग मेल मेरी क्लास सुन रहे हैं, अफेंड मत होना, बस मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, तो कोडान जो है, कोडॉन्स को आप फीमेल समझ लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डीजेनरेट कोडॉन्स में जो अमाइनो एसिड है, जो एक अमाइनो एसिड है वो कई सारे कोडॉन्स के साथ कोड कर रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लो, जैसे ल्यूसिन। ल्यूसिन एक मेल है। ठीक है, ये कितनों के साथ कोड कर रहा है, CUU के साथ, CUC के साथ, CUA, CUG।
Okay, so this leucine is coding with so many codons. So this character is called as degenerate codons, degenerate character. ठीक है. अब क्या होगा, नो पंक्चुएशंस बिटवीन एडजेसेंट कोडॉन्स. जो हम लोगों ने एमआरएनए में कोडॉन बनाया है, AGA, AGG are stop codons in mitochondria. Okay, great. या एक एक एक्सेप्शन आपने बता दिया, क्लास 12 यू हैव टोल्ड मी वन एक्सेप्शन. इसके अलावा और एक एक्सेप्शन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में आपने बताया. आई टोटली अग्री. हर सेल के पास न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए होता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के भी पास एक स्मॉल पैच ऑफ डीएनए होता है. बट अदर्स, इन द केस ऑफ प्रोटोजोमन्स, सीलिएट्स जो हैं, पैरामीशियम जो है, उनके पास कौन सी स्टॉप कोडॉन है और क्या एक्सेप्शन है, ये कल बताना मुझे. अगर आपको आता है तो अभी बताओ, अगर आता है तो मैं बोलूंगी सही है या नहीं. ठीक है, चलो. तो पंक्चुएशंस नहीं होंगे. जो हमारा एमआरएनए का सीक्वेंस है उसमें पंक्चुएशंस नहीं होंगे, कॉमा नहीं होगा, एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होगा, इमोजीज नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, एकदम ये कंटिन्यूअस फैशन में होगा. ठीक है, तो इस कंटिन्यूअस फैशन का नाम है कॉन्टिग्यूअस फैशन. ठीक है, मतलब एक एक को अटैच होके लग लग के है. ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं है बिल्कुल. ओके, लग लग के है, बाजू जैसे लाइन से बिठा देना आपके प्रेयर में, आपके असेंबली में. ओके, नवोदय स्कूल्स में ऐसे ऐसे बिठाया है लंबे से. चलो, तो जेनेटिक कोडॉन इज यूनिवर्सल. मतलब यूनिवर्सल का मतलब क्या है, छोटे से छोटे प्रोटोजोन को लेके बड़े से बड़े मैमल तक ये जो कोडिंग और कोडिंग होती है कोडॉन्स और अमीनो एसिड्स के बीच में, ये बहुत यूनिवर्सल है. ठीक है, तो ऑल्दो यहाँ पे है, तो यहाँ पे सम एक्सेप्शंस भी हैं. देखा, मैंने अभी बताया वही चीज यहाँ पे है. ठीक है, वही चीज यहाँ पे है, एक्सेप्शंस. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेप्शंस. अभी हाँ, क्लास 12 यू टोल्ड मी अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, टेल मी अबाउट प्रोटोजोन टुमारो. ठीक है, चलो. नाउ, जेनेटिक कोडिंग इज नॉन ओवरलैपिंग. हाँ भाई, ओवरलैप होना बिल्कुल हम लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि पर्टिकुलर कोडॉन कोड्स फॉर पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स. देखो, तब यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना. तो नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए जेनेटिक कोड को हमारे. ठीक है, देन जेनेटिक कोड इज अनएम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक. अनएम्बिगुअस मतलब कैसे, क्या कहते हैं, ऐसे ही नॉन स्पेसिफिसिटी बिल्कुल नहीं दिखाता. इट इज वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है. मतलब क्या, वन कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली वन अमीनो एसिड. मैंने बताया ना, जो कोडॉन है, जो फीमेल है, कोडॉन जो है ये बहुत स्पेसिफिक है. ओके, फीमेल जो है वो हर जगह पे, अरे उस मेल को भी देखा, इस मेल को भी देखा, हाँ उसके पास भी मेरा चांस है, इसके पास भी मेरा चांस है. ये कोडॉन ऐसी नहीं है, फीमेल ऐसी नहीं है, ये स्पेसिफाई कर लेगी, हाँ भाई मैं एक कोडॉन हूँ, मेरे लिए एक ही अमीनो एसिड. बट अमीनो एसिड ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे कोडॉन के साथ जाके आता है. ठीक है, तो बस एक एग्जाम्पल समझ के याद रखो तो इजी हो जाता है. ठीक है, दो कैरेक्टर्स आपको याद रखने होते हैं जेनेटिक कोड में, एक अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक, और एक डीजेनरेट. ये दो बहुत बार पूछे जाते हैं. ठीक है, और एक्सेप्शंस जैसे मैंने बताया ना, वहां पे मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफान शादी कर लिए हैं, उनको याद रखो. ओके, ओके हिमांशी, टीजीए स्टॉप कोडॉन फॉर प्रोटोजोमस. यस, कोडॉन इज करेक्ट, बट किस अमाइनो एसिड के साथ, विच अमाइनो एसिड? ओके, यू राइट टिल देन, आप लिखो जब तक. ठीक है, चलो. तो हम लोग टीआरएनए का कुछ स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं बेटा, क्योंकि टीआरएनए का स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए. ट्रांसलेशन अगर जाना है तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर जाना पड़ेगा. जो टीआरएनए का मॉडल है बेटा, वो दो टाइप्स के मॉडल है, मतलब इसका स्ट्रक्चर दो लोगों ने दिया है. ठीक है, एक पर्सन था हॉली और एक पर्सन था किम. ठीक है, हॉली ने क्या दिया, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया. ओके, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिया, उसका नाम है क्लोवर लीफ मॉडल. ठीक है, क्लोवर लीफ मॉडल. मैम आप मुझे पूछोगे कि मैम क्या होता है क्लोवर लीफ मॉडल. देखो बेटा, क्लोवर लीफ ऐसे होता है. ओके, समथिंग ऐसा. पता नहीं ये सिमिलर है भी या नहीं, ऑल्दो मैं बॉटनी स्टूडेंट हूँ, मेरा ड्राइंग बहुत खराब है. ठीक है, क्लोवर कुछ इसी तरीके को कहते हैं. ठीक है, चलो. तो क्लोवर लीफ मॉडल होता है, वो स्ट्रक्चर है. एंड थर्ड सेकेंड टाइप इज इन्वर्टेड एल शेप्ड मॉडल. ठीक है, इन्वर्टेड एल शेप, और ये जो है ना, ये 3 डायमेंशनल है. ठीक है, और ये जो है ये 3 डायमेंशनल है. ऑल्दो ये दोनों ही हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, हम जिसको पढ़ते हैं ना वो फर्स्ट वन है, 2 डायमेंशनल वाला ही, इसको ही हम लोग पढ़ते हैं, इसको ही हम लोग हमारे टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा जाता है. ठीक है, और ये होगा, ये हॉली का स्ट्रक्चर है 2 डायमेंशनल, और ये किम का स्ट्रक्चर है. ठीक है,
चलो, तो अब इस स्ट्रक्चर को, क्लोवर लीफ मॉडल को हमको क्लियरली पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टीआरएनए। यहाँ पे आपका जो टीआरएनए है ना, इसमें आप देख लो दो एंड्स तो होंगे होंगे। फर्स्ट पॉइंट, टू एंड्स। कोई भी एमआरएनए ले लो, टू एंड्स होंगे। वन विल बी 3' एंड, अनदर विल बी 5' एंड। तो यहाँ पे 3' एंड में हमेशा वो OH होता है, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। 3' में हमेशा OH होता है। और इस टीआरएनए में ये जो 3' का OH साइट है ना, वहां पे ACC कोडॉन है। ACC कोडॉन है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये आपको हेल्प करेगा अमाइनो एसिड का अटैच करने में। ओके, अमाइनो एसिड अटैचमेंट। अब आप मुझे पूछोगे, मैम टीआरएनए को करने को काम नहीं है का, ये क्यों अमाइनो एसिड को अटैच करते फिरेगा? बेटा, ट्रांसलेशन के लिए बहुत जरूरी है। इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन टीआरएनए नीड्स टू अटैच एन अमाइनो एसिड। टीआरएनए अपने सर पे अमाइनो एसिड को रख के जाएगा और ट्रांसलेशन का प्रोसेस करेगा। तो इसीलिए टीआरएनए के सर पे जो जगह होनी चाहिए ना अमाइनो एसिड को अटैच करने के लिए, वो 3' एंड ही होगा। ओके, दिस इज फर्स्ट वन। तो ये जो 5' एंड है, बस ये ऐसे ही है, इसका इतना कुछ खास रोल है नहीं। ठीक है, तो सेकेंड चीज आपको क्या याद रखनी है, ये जो टीआरएनए है ना, ये एक सिंगल काइंड ऑफ स्ट्रैंड है। लेकिन आपको यहाँ पे डबल स्ट्रैंड का जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये लंबा ऐसे होना चाहिए था, ऐसे लंबा होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा लंबा एक एक स्ट्रैंड यहाँ पे लिखना चाहिए, दो नहीं आने चाहिए। बस आपको दिखाते दिखाते मैंने 2 लाइन डाल दिए। ऐसे लंबा होना चाहिए था, बट यहाँ पे देख लो, पता नहीं ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है। ओके, आपको पता है ना, ये को टी से प्यार है और जी को सी से प्यार है ना? तो ये दोनों जब भी दिखते हैं तो ये बोलते हैं कि हाँ भाई, हम दोनों को अलग नहीं रहना चाहिए, हम दोनों साथ जिंदगी करेंगे। तो ये क्या करेंगे, जहां पे ये है वो यू के साथ ज्वाइन हो जाएगा, जहां पे सी है वो जी के साथ ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से आप देखोगे कुछ जगह पे बॉन्डिंग्स बनी है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक बॉन्डिंग आपको दिखेगी, यहाँ से यहाँ पे दिखेगी, यहाँ से यहाँ पे दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। सो अदर देन ओके, और जो रीजन्स हैं जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, अदर देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एरियाज, उनको हम बुलाते हैं लूप्स। जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, उन एरियाज को हम बुलाते हैं लूप्स। और आपके टीआरएनए में बेटा आपको 3 टाइप के लूप्स देखने को मिलेंगे, 3 कैटेगरीज ऑफ लूप्स। ठीक है, 3 टाइप के आपको लूप्स देखने को मिलेंगे। तो कौन से टाइप के लूप्स हैं यहाँ पे, आप मुझे बताते जाओ। कैन एनीबॉडी टेल मी, किसको क्या पता है, जरा बताते जाओ। मैं इतने रिसोर्सेस रख के बैठी हूँ ना, तो एट द एंड ऑफ द डे मैं भूल जाती हूँ कि हाँ भाई, मैंने कौन सी चीज कौन सी किताब से काढ़ी थी। ओके, तो फर्स्ट लूप यहाँ पे देख लो बेटा, फर्स्ट लूप इज डी लूप। ओके, कैन एनीबॉडी टेल मी डी लूप का पूरा नाम क्या है? डी लूप का पूरा नाम क्या है? यस, सिर्फ हमारे पास 5 मिनट है, जल्दी जल्दी बताइएगा, डी लूप का पूरा नाम क्या है? तो इस डी आर्म को बेटा हम कहते हैं, ओके, इस डी आर्म को वी आर गोइंग टू कॉल इट एज डाइहाइड्रो यूरासिल। डाइहाइड्रो यूरासिल। ठीक है, तो अब आप मुझे पूछोगे मैम इसका काम क्या है? बेटा इसका काम ये है, दिस हेल्प्स इन द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। हमको ट्रांसलेशन के लिए अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज की एंजाइम की जरूरत है। तो ये जो एंजाइम है, ठीक है, जो एंजाइम है वो और इसका रिकग्निशन होना चाहिए और अटैचमेंट होना चाहिए, है ना? तो ये जो डी आर्म है, ये रिकॉग्नाइज करेगा एंजाइम को और हेल्प करेगा उसके साथ अटैच करने के लिए। ठीक है, तो डी आर्म का काम ये है, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम एंड अटैचिंग। ठीक है, तो सेकेंड टाइप का जो आर्म है ये है बेटा टी लूप। ओके, टी लूप इज एन सेकेंड लूप। तो यहाँ पे इसका नाम क्या है, इसका पूरा जो है ना, टी साई सी लूप भी कहते हैं इसको। तो टी साई सी में क्या कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा स्यूडो यूरिडिन। ओके, यू विल फाइंड स्यूडो यूरिडिन हियर। तो ये क्या करेगा मैम, ये लूप का काम क्या है? ये जो लूप है ना बेटा, दिस हेल्प्स इन द राइबोसोम रिकॉग्निशन। ओके, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। मैम इसका क्या मतलब है? देखो बेटा, ट्रांसलेशन का जब प्रोसेस होता है तो टीआरएनए को पता नहीं लगता कि हाँ भाई मैं कहाँ पे जाके अटैच करूं राइबोसोम के साथ। सी, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एक एमआरएनए होता है, एमआरएनए के ऊपर आपको अटैच करना होता है टीआरएनए को।
ठीक है, जब टीआरएनए आ जाएगा ना, उसके ऊपर एक राइबोसोमल का यूनिट आएगा, एक बड़ा राइबोसोमल यूनिट ऊपर, एमआरएनए को कवर करते हुए स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, ये पूरा बना के एक ट्रांसलेशन का कॉम्प्लेक्स बनता है। तो जब वो लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम आके टीआरएनए के ऊपर अटैच करेगा, तो उसके लिए कौन हेल्प करता है? टी लूप हेल्प करता है। ठीक है, तो डी लूप किसके लिए? एंजाइम के रिकॉग्निशन के लिए। टी लूप किसके लिए? राइबोसोम के अटैचमेंट के लिए। एंड जो लास्ट लूप है, इसको हम बुलाते हैं एंटी कोडॉन लूप। जो लास्ट लूप है, इसको हम बुलाते हैं एंटी कोडॉन लूप। तो एंटी कोडॉन लूप का क्या काम होगा बेटा? यहाँ पे आपको तीन न्यूक्लियोटाइड बेसिस मिलेंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में है CGI। आप अब मुझे पूछोगे मैम आई कौन सा न्यूक्लियोटाइड बेस है, हमको तो पता ही नहीं है आई कौन सा है। देखो बेटा, जो आई है ना, इस आई को हम कहते हैं वोबल हाइपोथेसिस या फिर वोबल पोजीशन। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी क्या है वोबल हाइपोथेसिस और वोबल पोजीशन। ठीक है, तो अब के लिए आप ये देख लो, एंटी कोडॉन जो है ये अटैच करेगा कोडॉन के साथ। ओके, दिस विल अटैच विद द कोडॉन। तो ये कोडॉन एंटी कोडॉन बाइंड करेंगे इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें होने को है इन द प्रोसेस। तो इतना काफी है, अब इतना देख लो तो टीआरएनए का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये जो वेरिएबल लूप है, इसका फंक्शन अभी भी अनक्लियर है, वेरिएबल लूप का फंक्शन अभी भी अनक्लियर है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। अब कल के क्लास में हम लोग वोबल हाइपोथेसिस को देखेंगे और ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास। अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, सो देयर इज अ क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इनिशिएशन कोडॉन फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स इज AUG. Okay, AUG is the start codon which codes for methionine. Okay, it's the start codon which codes for methionine. ठीक है, बस इतना याद रख लो, काफी है। So that's all for today's class. See you in the next class. Thank you so much.